Hello everyone, welcome back in Python's class. Today we are going to discuss about the database handling using the Python program. Right? I am Ashish Goel, your teacher, your mentor. Okay, let's start with the first thing. सबसे पहले हमें जो यहाँ पे requirement है वो है हमारे पास SQL server होना चाहिए. So we must install the SQL server to our machine. So once you install your SQL server, you will get the SQL server ready in your machine. Then you can open it using the SQL command prompt or using the SQL IDE, that is your workbench, right? So I have installed the SQL IDE here, MySQL Workbench 8.0. This actually allow you to do your all SQL needful using a GUI interface, right? So this is how it looks like your welcome page of the MySQL Workbench. Here you have the connection established already. Okay, जब आप install करते हो तो then you give the password of root and all, and once you install it, you will get this workbench automatically connected to that server what you have been installed, right? तो अभी यहाँ पर आपने क्लिक करना है रूट के साथ कनेक्ट करने के लिए. Once the connection is being established, you will get this type of view here. Okay, here is the schemas. You can say the databases or the schemas of the SQL, MySQL. तो भी यहाँ पर हमारे पास में है ये कुछ सिक्किला, सिस और वर्ड, ये पहले से हमें मिलते हैं. स्कूल मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, तो आप भी एक नया स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं. हाउ? Just right click on any schema and do create schema. ठीक है, name your schema. Let's say uh, new schema. Whatever be the name. ठीक है, or you can give it like this, or you can say administration. Okay, and just apply it. Okay, apply again. ठीक है, here is the command create a schema, apply. Okay, finish. Once you created the schema, here it will show like this. Okay, now this. Okay, in this you can create the table and all, right? Table, right click on the table, create table, and just like that you can create the table. You have to give the name of the table and column name, etc., and apply, right? Like this. So this is how your GUI works. Alright, फिलहाल अभी हमें स्कीमा की जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं. वी हैव ऑलरेडी अ स्कीमा टू वर्क विद. तो स्कूल में हमने यहाँ पर स्कीमा स्कूल नाम से बनाया हुआ है, इसमें ऑलरेडी टेबल्स हैं लाइक एसटीडी और स्टूडेंट. ठीक है, अब एक नई टेबल हम बनाएंगे यूजिंग द एसक्यूएल सॉरी पाइथन कोड, राइट? तो लेट्स गेट इनटू द पाइथन. तो पाइथन के लिए हमने यहाँ पर देख लेना सबसे पहले क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है. एसक्यूएल सर्वर हमने इंस्टॉल कर लिया होगा. उसके बाद हमें पाइथन 3.4, ये मैंने अपनी मशीन में डाला हुआ है, आप कोई और चाहें तो वो भी रख सकते हैं. ठीक है, तो पाइथन 3.4, 3.8, 3.9 एनी आप यूज कर सकते हो. उसके बाद आपको चाहिए माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन. ये आपको पाइथन की साइट से ही मिल जाएगा, या फिर आप सीधा गूगल पे सर्च कर सकते हो फॉर माई एसक्यूएल कनेक्टर. ऑलराइट, तो माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर. अभी मैंने 2.1 डाउनलोड किया हुआ है. दिस इज फॉर पाइथन 3.4. तो क्योंकि मैं पाइथन 3.4 के साथ काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये कनेक्टर लिया हुआ है. तो पहले आप पाइथन इंस्टॉल कीजिए, देन आप कनेक्टर को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर दीजिए. दैट इज रेडी नाउ. एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज you just need to do or write the code like this. Okay, so first you have to import the mysql connector. Okay, to import mysql.connector. Okay, in this connector module you will get the connect function. In the connect function you have to provide some arguments like host, let's say local host, because अभी हमारा जो सर्वर है वो लोकल मशीन पे चल रहा है,
इसलिए अभी हम यहाँ पर लोकल होस्ट देंगे, और अगर हम किसी रिमोट मशीन से कनेक्ट करते हैं तो फिर वो रिमोट मशीन का जो सर्वर पाथ आपको दिया जाएगा वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। देन योर डेटाबेस व्हिच इज अ स्कूल, इन आवर केस स्कूल, and user root and the password say abc123 or whatever be the password you have given at the time of installation. Or if you are using a remote host or the remote server, then the server will provide you some database name, username and password to use, right? And then we are just testing it whether it is connected proper or not. So for that हमने यहाँ पे एक prompt लिख दिया, एक मैसेज से open connection, और इधर हमने लिखा है कौन डॉट डेटाबेस। ठीक है, तो सो दैट कि हमें पता लग जाए कि कौन ओपन कर दिया और कौन का डेटाबेस फैच होकर हमें मिल जाएगा, किस डेटाबेस के साथ हम काम कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट। हमने इसको सेव किया, रन कराते हैं F5 से। सिंपल आईडीएलई हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कोड किसी भी आईडीई पर चल जाएगा, चाहे वो इक्लिप्स हो, चाहे फिर वो मतलब कोई भी XYZ पाइथन आईडीई है अगर, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जेटब्रेन का पाइचार्म हो, कुछ भी, राइट। तो देखिए ये आपका ओपन हो चुका है कनेक्शन, और यहाँ पर हमें रिजल्ट भी मिल गया, स्कूल ये आउटपुट आ गया हमारे पास। ओके, लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट अ टेबल यूजिंग दिस। So here is the code once again. You can note it down. Okay, visible I think now. All right. Okay, now how to create a table? Let's check it out. This. Okay, to create a table, first three lines will not going to change. Even this is optional. ये आप हटा भी सकते हो क्योंकि अभी हम टेस्ट कर चुके हैं, राइट। आप रख सकते हो। उसके बाद हमें चाहिए कि यहाँ पर कर्सर, ठीक है, कर्सर इज मतलब is in, you can say the Python level or the software level cursor of your table so that you can work with your database। ठीक है, डेटाबेस हैंडलर आप एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हो इसको। तो इसकी हेल्प से ही आप सारे काम करेंगे। तो जो भी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी है, दैट क्वेरी हैज टू बी एग्जीक्यूट थ्रू द कर्सर ओनली। तो हमने कर्सर ऑब्टेन कर लिया CUR नाम के वेरिएबल में। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड के लिए हमने लिखा CUR डॉट एग्जीक्यूट। और क्या करना चाहते हैं, हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो जो कमांड आपने एसक्यूएल में यूज किए हैं वो सारी कमांड्स आप यहाँ लिख सकते हो। तो क्रिएट टेबल स्टाफ, हमने टेबल नेम दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। हमने पहला कॉलम नेम दिया से SID, उसका टाइप हमने बता दिया। हम चाहते हैं कि ये प्राइमरी की बने, तो प्राइमरी की हमने लगा दिया। देन ऑटो इंक्रीमेंट भी हम चाहते हैं, दिस फील्ड विल बी द ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड। दैट मीन्स कि हर बार इसका ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होना चाहिए। नया रिकॉर्ड जैसे आएगा ऑटोमेटिक न्यू वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, देन योर एस नेम, ठीक है, जो कि हम चाहते हैं varchar 50 हो, और फिर एक हमने और रख लिया लाइक एस ईमेल। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी जो भी टेबल आप बनाना चाहें, इस टाइप से कोई भी टेबल आप बना सकते हैं। दिस इज द वेरी सिंपल कमांड यू लर्न इन द SQL section, right? Right, then we have to use the con.commit statement so that ki whatever command we executed should be saved। ठीक है, तो once you committed your transaction, the transaction will be मतलब confirmed or saved in the database, right? इसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज कर देना है फाइनली, and your work is done। Let's check it out। So run। आप चाहें तो एक मैसेज भी दिखा सकते हैं so that we got to know कि हम लास्ट तक पहुंचे या नहीं। ठीक है, ओके, सेव किया हमने F5। okay, now it's done, table created। Let's check out in the database whether it is there or not। so here is your workbench। ठीक है, ये स्कूल है। यहाँ पर स्कूल में अभी हमारी टेबल्स जो दिखाई दे रही हैं वो दो, STD और स्टूडेंट। हमें एक बार रिफ्रेश करना है यहाँ से स्कीमास को, एंड यू विल गेट द न्यू टेबल। हियर इट इज स्टाफ। ऑलराइट, तो कॉलम जो हमने बनाए थे SID नेम ईमेल, ये आ गए सारे यहाँ पर। अभी आप यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टाफ। अभी तक कोई भी हमारे पास में डेटा नहीं है, तो अब ये ब्लैंक टेबल आपको शो कर देगा।
Okay, double click on the schema, then only it will work for the schema. Otherwise you have to write like school dot start. Fine. Or double click on the schema so that the schema will be activated. So your student schema is now activated and here select staff from staff, तो ये भी आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी ये नहीं है। इधर यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे फॉर्म एडिटर, इस तरीके से आप फॉर्म एडिटर ओपन करके फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। फील्ड टाइप्स, ये आपको देखिए फील्ड की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे हम रखते हैं इसे रिजल्ट करें। Okay, once your table is created, you have to enter the records in the table. So we are going to enter the records in the table, but before that, you must look your command once again and just note it down. Okay, so execute, create table, name of the table, staff, name of the first column within the bracket, int type, primary key if you want, auto increment if you want, again comma and the new column name and its type, comma, one more column name and its type, and so on, right? Like this. Otherwise, you close the bracket you started before the first column here and just close the double quotes. ठीक है, तो डबल कोट्स में आप कमांड यहाँ पे लिख रहे हैं एज अ टेक्स्ट, तो ये कमांड फाइनली आपके सर्वर में जाकर एग्जीक्यूट करेगी। ऑलराइट, उसके बाद आपको करना है कॉन डॉट कमिट एंड देन फाइनली क्लोज, और ये ऑप्शनल है। यस, हम मैसेज दिखाना चाहते हैं कि हमारी सारी कमांड होने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं विदाउट एनी एरर, और ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। हम इंसर्ट करना चाहते हैं। Okay, now insert. Same, first 3 or even 4 rows are going to be same. कर्सर हमें ऑब्टेन करना है, हमें कनेक्शन बनाना है, सारी चीजें वही हमने रखी हुई हैं। इसके बाद हमें इंसर्ट क्वेरी इंसर्ट करना है, तो हम चाहते हैं इंसर्ट इनटू स्टाफ, दैट द सेम क्वेरी। उसके बाद फील्ड्स नेम जिसमें हम इंसर्ट करना चाहते हैं। एसआईडी हमने नहीं लिया है क्योंकि एसआईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड लिया था, तो वो अपने आप से 1 2 3 4 आता रहेगा। ठीक है, वैल्यूज हमने यहाँ दे दिया, ये आपकी वैल्यू हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं, इसके लिए इनपुट लिया जिसको कि बीच में यहाँ कॉन्कैटिनेट किया है। ठीक है, उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू भी क्योंकि टेक्स्ट है तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंगल कोट, और उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट कराया है इनपुट। ओके, देन फाइनली हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर, एंड इस तरीके से आप चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं टू सी व्हाट क्वेरी विल बी generated and executed. स्लैश n कॉमा, यहाँ पे हमने दिखा दिया क्वेरी, कॉमा स्लैश n, तो स्लैश n तो आएगा लाइक दिस। ओके, तो हम क्वेरी को यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं, उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, एंड देन फाइनली मैसेज दिखा रहे हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट। हमने इसको सेव किया एंड जस्ट रन मॉड्यूल। ओके, तो एंटर नेम, तो भी नेम हम एंटर कर देते हैं, जैसे आशीष। एंटर ईमेल इज ashish.goel@live.in, एंटर। ठीक है, तो देखिए ये आपकी टेबल के लिए रिकॉर्ड इंसर्ट करने की क्वेरी बनी। इंसर्ट इनटू स्टाफ, एस नेम कॉमा एस ईमेल, वैल्यूज आशीष, और ये आ गया यहाँ पे आशीष गोयल। यहाँ हमने कॉन्केनेट कराया था पहला इनपुट, और यहाँ हमने कॉन्केनेट कराया था दूसरा इनपुट मेथड, राइट, लाइक दिस। ओके, आप देख सकते हैं आपके रिकॉर्ड्स में ये टेबल में आ चुका होगा, तो इसे दोबारा से एग्जीक्यूट कराइए। हियर इज द रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड आपके पास आ चुका है, यू कैन सी हियर 1 आशीष, लाइक दिस। ठीक है, तो 1 ऑटोमेटिक आया है, आशीष और ashish.goel@live.in ये हमने इनपुट कराया था, इट्स लाइक दिस। फाइन, ओके, लेट्स मूव ऑन। एक बार क्वेरी आप नोट कर सकते हैं।
Okay, like this. फाइन, अभी इंसर्ट हो चुका है। कुछ रिकॉर्ड्स और हम इंसर्ट कर लेते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा रजत @live.in। ठीक है, एक और रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया, रितु @live.in। आरुषि @live.in। ओके, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो देखिए इंसर्ट अपने आप से ही आ गया। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टकट यू कैन से इजीली आप यहाँ पे ग्राफिकल मोड को यूज करके ये काम कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए एंड वंस यू फिनिश द रिकॉर्ड्स आर कमिटेड। ओके, तो भी आप जब भी ओपन करेंगे तो यू विल हैव द 4 रिकॉर्ड्स। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टाफ चलाया है, तो अगर ये काम हमें हमारे पाइथन से करना हो तो कैसे करेंगे? लेट्स डू इट। ऑलराइट, तो सिलेक्शन हमें करना है रिकॉर्ड्स का। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए कुछ अलग अलग टाइप से कैसे काम कर सकते हैं वो बताता हूँ। पहले सिंपल, हम चाहते हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स सेलेक्ट होकर हमारे को मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी लगानी है। तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टाफ इज लाइक सिंपल, हमने सेलेक्ट क्वेरी लगाई है। ठीक है, ये क्वेरी वेरिएबल इसको हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट में डाला और उसके बाद हमने क्या किया है, फैच ऑल किया है। फैच ऑल करना जरूरी है, ये सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी की केस में करने की जरूरत पड़ेगी। तो सेलेक्ट क्वेरी फैच ऑल किया तो यहाँ पर ये रोज में आ गया। ओके, रोज में आ गया फैच ऑल, तो सारे रिकॉर्ड्स फैच होकर रो में आ गए। एंड कॉन डॉट क्लोज, तो ये हो गया हमारा क्लोज, राइट। इसके बाद जो भी रोज है उसको उठाकर हमें डिस्प्ले करना है, तो रोज को उठाकर हमें डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, तो जो भी रो बन के आएगा, मतलब ये जो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं वो एक्चुअली आएंगे लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में, जहां पर हर एक टपल एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, रो और रिकॉर्ड। राइट, लाइक दिस। ठीक है, रो 1 से उसके बाद आ जाएगा आपका रो 2 एंड सो ऑन। फाइन, इस तरीके से तो चेक करते हैं ये किस तरीके से आउटपुट हमें मिल रहा है। देखिए, रन कराया हमने यहाँ पर इसको। सी वेयर इज द आउटपुट। सी, ये देखिए ये लिस्ट यहाँ शुरू हो रही है, ये लिस्ट यहाँ पे एंड हो रही है। पहला टपल, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टपल। ठीक, जिसके अंदर आपके पास ये तीनों फील्ड्स आ रहे हैं, वन आशीष, आशीष वेल @live.in, दो फ्री एंड से फोर। ओके, आप इसको रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड भी व्यू कर सकते हो। रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड अगर व्यू करना है तो क्या करिए, ये वाला आप हटा दीजिए, फिलहाल रोज हमें नहीं दिखाना। रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। ये है हमारा रोज, जो रोज में हमारे पास में लिस्ट के अंदर टपल्स आ रहे थे, उन टपल्स को एक एक करके आप एक्सेस कर लीजिए। ये रो में आ जाएंगे, एक एक रो में आ जाएगी। रो को सीधा चाहे तो प्रिंट कराइए, और अलग अलग वैल्यू आपको एक्सेस करनी है तो टपल की तरह से आप अलग अलग वैल्यू एक्सेस करते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो कि उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो रो 0, रो 1 एंड रो 2, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। इसको सेव किया, रन कराया, तो पर आते हैं। सही, पहले जो एक साथ आ रहे थे सारे रिकॉर्ड, अब हमने उसमें एक एक करके निकाल लिया। देखिए पहला ही रो हमारे पास आई, इस रो को भी हमने अलग अलग कर लिया। वन आशीष, आशीष गोयल @live.in, फिर सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, लाइकवाइज।
ओके, रो बाई रो हम एक्सेस कर रहे हैं, इवन फील्ड बाई फील्ड भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ऑलराइट, let's move on. Okay, so this is how you can do this. All right. If you want to select some specific content, then how we can do that? तो select करना है where clause के साथ basically. तो वो कैसे करेंगे? Let's check it out that also. तो वो करने के लिए आपको क्या करना है? तो स्पेसिफिक कंटेंट अगर आपको चूज करना है तो उसके लिए आप वेयर क्लॉज यूज करेंगे। तो स्पेसिफिक कंटेंट के लिए हमने यहाँ पे सर्च किया नेम के बेसिस पे, तो हम एक नेम एंटर करा रहे हैं नेम नाम के वेरिएबल में। इसको वेयर क्लॉज के साथ हमने कॉन्केटनेट करा दिया हमारे सेलेक्ट क्वेरी में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, फैच ऑल, क्लोज किया कनेक्शन। अब एक रो आप सीधा सीधा डिस्प्ले करा दें या फिर रो में से रो निकाल के और फिर एक एक करके वैल्यूज को। ओके, इट्स लाइक दिस। सेव किया हमने, कंपाइल किया, रन। ओके, अभी हम यहाँ पर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं से आशीष, आईडी 1, नेम आशीष एंड दिस। ठीक है, ओनली वन रिकॉर्ड इज फेच्ड हियर। और रिकॉर्ड देख लेते हैं, सपोज चाहते हैं रजत, तो इट विल फेच द रिकॉर्ड ऑफ रजत। ठीक है, लाइक दिस, to fetch the specific record or the interested record only. All right, it might be possible that you have records and you want to update that record. So how we can do so? So for update, what we can do is, yes, the command update staff. ठीक है, update your table name, then set your column name, or if more than one, then you can put the comma and like this. ठीक है, तो एंटर आईडी टू अपडेट, तो अपडेट करना है किसको वो आप बताइए। ठीक है, और आप यहाँ पे उसे सेलेक्ट क्वेरी की तरह कॉन्कैटिनेट करा दीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, उसके बाद कमिट, कोई यहाँ पर आपको फैच ऑल नहीं करना। ठीक, और जो आपका सेलेक्ट था उसमें आपको एक्चुअली कमिट नहीं करना। ठीक है, ऑलराइट, अभी हमने इसको रन कराया। ठीक है, तो अपडेट करना है हमने रिकॉर्ड नंबर 1। ठीक है, देखिए रो अपडेटेड, यानी कि रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। लेट्स चेक इट आउट इन द टेबल। तो ये पुराना रिकॉर्ड देखिए अभी दिखा रहा है, जिसे हम रिफ्रेश करेंगे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ रही है आशीष, मैं आपको थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी आशीष वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी हम अपडेट कर रहे हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं इस कमांड को। अपडेट किया रिकॉर्ड, या देखिए आशीष गोयल ये चेंज। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। राइट, बैक। Okay, this is how we can do the delete or as well. So how we can do the delete operation. So let's check out this also. To delete record. So deleting a record, we use delete command. Delete from staff where sid equals to, जो भी हम sid देंगे वो हम यहाँ delete कर पाएंगे। तो बाकी वही execute करना है query को और फिर commit and then close. Okay, let's do it. Suppose हम record number 2 delete करना चाहते हैं। No, deleted. Okay, let's check out. ठीक है, ऑलरेडी अभी हमारे पास में रिकॉर्ड जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं पुराने वाले। तो अभी हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड मौजूद है, देखिए 2 रजत। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको रन कराइए। ठीक है, ये 2 इसमें से डिलीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पुराना वो दिखा रहा था, जैसे हमने रिफ्रेश किया या दोबारा से सेलेक्ट क्वेरी चलाई तो विल हैव ओनली द रेस्ट रिकॉर्ड, डिलीटेड रिकॉर्ड विल नॉट बी अवेलेबल एनीमोर। Okay, so this is how you can work with your database using Python. तो Python के साथ आप इस तरीके से database handling कर सकते हैं। Alright, okay, thank you very much. Bye bye.